Okay. Now I am Anjana Verma. I will start a lab of object-oriented programming and methodology from today. And first of all, we will see what is the object-oriented programming and methodology. And methodology के साथ में, with the help of this methodology, which tool we are using. Object-oriented programming is a methodology or a concept by which we use mostly object, and C++, Java, they are the tools by which we can use object-oriented programming. So first we will see what is C++. Yesterday we have seen what is object-oriented programming, and C++ is a tool for object-oriented programming, and C++ fulfill all the properties of object-oriented programming. It is a general purpose object-oriented programming and very much similar to the C. But C के बाद after that जो well-defined, structured, automated functions, they are available in C++. That's why we are normally saying that it is the advancement of C. C++ is totally object-oriented, and there are more popular languages for object-oriented concept is C++, Java, Python. जितनी भी ये लैंग्वेज है, C++ तो इसमें C भी बहुत सारा आता, बट जावा आपने यदि करी हो प्रोग्रामिंग तो आपने देखा होगा कि जावा स्टार्ट ही क्लास से होती है, यानी वो टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और वहां पे फैसिलिटीज ये हैं कि ऑटोमेटिक रेडीमेड इनबिल्ट इतने फंक्शन है कि आपको बहुत ही कम ये सोचना पड़ता है कि हम अपना कस्टमाइज कुछ फंक्शन बनाएं. बस जावा के साथ शायद एक ड्रॉबैक ये है कि वहां टाइपिंग बहुत करनी पड़ती है, और ज्यादातर कैमल केस वर्क होता है. कैमल केस मतलब हर लेटर का यदि दो वर्ड को मिला के वहां पे एक वेरिएबल बना है, तो हर वर्ड का जो कहते हैं ना कि पहला लेटर होता है उसको हम कैपिटल लिखते हैं, उसको हम कैमल केस कहते हैं. C++ कहाँ यूज होती है? हु यूजेस C++? एयरलाइन टिकटिंग, फाइनेंशियल फॉर्मेशंस, वेब कॉमर्स में, सोशल मीडिया में. जावा वर्चुअल मशीन इज आल्सो मेड बाय द C++. जावा स्क्रिप्ट जहां लिखी गई है, इंटरनेट के बहुत सारे ब्राउजर्स एंड फ्रेमवर्क्स ऑल आर मेड फ्रॉम द C++, यानी वहां सब जगह C++ का यूज हुआ है, और उसी से हमारे को सामने कुछ दिखाई दे रहा है. बेसिक कंसेप्ट ऑफ C++ में कुछ चीजें आती हैं जो आप जानते होंगे, बट वी रिव्यू इट. C++ आप एक और C पढ़ेंगे मेरे ख्याल से, डेटा स्ट्रक्चर में आपको नित्या खरे मैम बताएंगी. तो हम इस लैंग्वेज को इतना पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर में कि मेरे ख्याल से जो डेली क्लास अटेंड करेंगे या जो डेली इसको करेंगे, बहुत अच्छा मास्टर बन जाएंगे C और C++ में. तो फर्स्ट थिंग इज वेरिएबल्स. वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वी आर यूजिंग अ नेम और अ थिंग बाय विच वी कैन स्टोर आवर इंफॉर्मेशन, और जहां उस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं इन द मेमोरी, we can use that information, stored information, with the help of this variable. यानी मैंने लिखा है a equals to 123.74897. okay, if you want to use that long value 1234.7897, you just can write cout a. When you will write cout a, you will get that big one value. So for storing the data in RAM, we are using variables. Storage के लिए और भी बहुत सारे तरीके वो आप पढ़ चुके होंगे. Now control structure. Control structure means by which you are controlling your program. Simply sequence statement में जब हम लिखते हैं तो one by one statements आते जाते हैं. But after one by one statement, when you want to divert your program somewhere else, if you have two options and you want to go the first option or you want to go the second option,
you have to use branching statement by which you have to do some decision. आपको decision लेना पड़ता है. If the value is this, then do this. If the value is false, then do this. That is branching statement. So by which condition you can control your program. After that controlling statement में loopings भी आते हैं. For, do while, if else के through भी you can produce some loops, and with the help of loop you can execute some statements again and again, or as many times you want. If you want to print a statement 5 times, then you can form a loop. You can construct a loop from 0 to 5, from 10 to 15, from 100 to 200, जहां पर कि आप स्टेप वैल्यूज 10 की देंगे. बाय स्विच स्टेटमेंट, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं from which you can control your code, flowing of your code or flowing of your program. Now third thing in this, third thing is tools. C++ के रेडीमेड बहुत सारे टूल्स आते हैं, या टूल्स है जैसे कि पहले हम लोग जब प्रोग्राम किया करते थे तो यू हैव टू राइट योर प्रोग्राम ऑन एडिटर. नोटपैड पे हम प्रोग्राम जावा का लिखते थे. आजकल आईडी आने लगा है, और नहीं आता अभी भी आप जावा पे एडिटर पे प्रोग्राम लिख रहे हैं, फिर आप प्रॉम्प्ट पे जाके उसको कंपाइल कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको आप रन कहीं और जाके कर रहे हैं. तो आपको C++ में जैसे टर्बो ने एक टूल बनाया है, IDE मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाया है, और जैसे ही आप टर्बो C++ करते हैं तो वहां पे you will get the notepad also, where you can write your program, you can edit your program, and you are also getting the facility to compile and run your program. तो इस तरह एक टूल बना हुआ मिला है जिसके कारण हमारी प्रोग्रामिंग का मेथड या हमें जो कोडिंग करनी है हम सिर्फ उस पे स्ट्रेस करते हैं या वहां ध्यान देते हैं. प्रोग्राम के कैसे चलेगा और कहाँ कहाँ जाके चलाना है, वहां से हमारा ध्यान डाइवर्ट हो चुका है. अदरवाइज कई बार पहले ऐसा होता था कि हम उसी में उलझे रहते थे. नाउ यू कैन टोटली ऑब्जेक्ट और यू कैन टोटली फोकस ऑन योर क्वेश्चन और टास्क और प्रोग्राम. Now we will see the how to download or install C++. मेरे पास 10 है, हो सकता है आपके पास लोअर वर्जन हो, और ये भी हो सकता है कि you have C++ या आपके पास इंस्टॉल्ड हो. इट्स ओके, बट जिनके पास नहीं है मैं ये पीपीटी आप लोग को शेयर कर दूंगी, तो इसको देख देख के भी आप अपने उसमें C++ डाउनलोड कर सकते हैं. सिंपली आप गूगल पर जाइए और लिखिए टर्बो C3 C++ डाउनलोड्स फॉर विंडोज. यहाँ पे फर्स्ट ही आपको दिखाई दे रहा है विंडोज 7, 8, 8.1, 10 लाइक दिस. यू कैन सी इट. यहाँ क्लिक करेंगे आप, तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का स्क्रीन कन्वर्ट होगा, एंड आफ्टर दैट यू क्लिक ऑन द डाउनलोड. आफ्टर दैट डाउनलोडिंग हो रही है, तो यहाँ नीचे आप कॉर्नर में देख रहे होंगे, लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे कुछ zip फाइल आपको डाउनलोडेड दिख रही है. जब ये पूरी डाउनलोड हो जाए, अभी ये आधी हुई है, whenever it will complete, then you click on that, you will see Turbo C 3.2. ओके, सिंपली आप पहले या तो आप इसको यहीं डबल क्लिक करें तो यहाँ सेटअप दिखाई देगा, इंस्टॉल इट. बेहतर होगा कि बार बार यदि यही काम करना पड़ सकता है या आपके पास रखा रहे, तो आप इसको क्या करिए, कॉपी कर लीजिए. यहाँ पे मैंने एक सी फोल्डर खोला है. इस सी फोल्डर में मतलब सी के अंदर मैं यहाँ से उठाकर इसको कॉपी कर ले रही हूँ. तो कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू कैन सी हियर. आफ्टर दैट you double click it. When you double click it, you will see the setup. Now you click on the setup. अभी हमने क्या किया है, अभी तक हमने क्या किया है, we have downloaded Turbo C++ files on your system. आपने अपने हार्ड डिस्क में ले आए हैं, मैंने सी में उसको कॉपी कर लिया है, बट इंस्टॉल कर रही हूँ मैं. सेटअप को इंस्टॉल करना मीन्स उसकी जितनी भी रिक्वायर्ड फाइलें हैं वो यहाँ पे एक्सटेंडेड वर्जन में हमारे पास स्टोर हो जाएंगी. ठीक है, मैं इसको डबल क्लिक करती हूँ तो कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देती है.
ये कुछ फॉर्मेलिटीज करेगा आपसे, नेक्स्ट 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 पूछता जाएगा एंड व्हेन इट विल फिनिश यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यू क्लिक दिस। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको डेस्कटॉप पर इस तरह से ये C++ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने इसको व्हेन आई विल डबल क्लिक इट, तो ये इस तरह की मुझे कुछ स्क्रीन दिखाई दे रही है। मैंने स्टार्ट टर्बो C++ पे डबल क्लिक किया। नाउ यू विल सी द C++। सिंपली मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, वेरी स्मॉल प्रोग्राम ऑफ समवन, एंड आई हैव रिटन द प्रोग्राम। द एक्सटेंशन ऑफ C++ इज .cp. For extension of C is .c only, and CPP लिखेंगे तो that is the extension of C++। यहाँ पे मैंने IO include फाइल हैश इंक्लूड करिए फाइल iostream.h and conio.h, void main लिखा है, उसके बाद curly brackets लगाए हैं, and inside the curly brackets I have made a small program of sum. Integer ABC means I have taken 3 variables C in A, B, C. इसका मतलब क्या है कि I am inputting the value or I am extracting the value from the keyboard. जब मैं पहला नंबर टाइप करूंगी कीबोर्ड से तो उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट होके एक वेरिएबल की स्टोरेज मेमोरी में सेव हो जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंटीजर a प्लस कॉमा b कॉमा c मीन्स आई एम डिक्लेयरिंग 3 नेम, one is a, second is b and third is c. These 3 names will store memory and every name will store 2 byte memory because the type of memory is integer. Always C++ में whenever you create integer memory, it will occupy 2 byte space. Now A will occupy 2 byte, B also occupy 2 byte, and C also occupy 2 byte. And whenever I will give C in A, तो क्या होगा, जो भी वैल्यू आप यहाँ कीबोर्ड पे दे रहे हैं, it will store in the memory of A. यहाँ मैंने लिखा है cout means जो वैल्यू A में है, B में है, C में है, all will be plus and the value will be come to the cout means standard output, यानी आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी। ओके, आई थिंक उसके बाद जब ये प्रोग्राम लिख लिया तो यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे मैंने अभी बताया कि ID इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगी। यदि मैं प्रोग्राम कंपाइल करती हूँ और कोई एरर नहीं आती है, मींस आई कैन रन माय प्रोग्राम। यहाँ बगल में आपको दिखाई दे रहा है साइड बाय साइड R. When you click R, then you will get the output like this. यहाँ हम prompt पे आएंगे and in prompt it will display sum because मैंने वहां पे प्रिंट कराया था sum। उसके बाद मैंने यहाँ 3 वैल्यूज दी हैं और जब मैंने cout A plus B plus C किया था तो उसका ये सम होकर ये वैल्यूज हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आज के लिए अभी हमारे पास जितना था we have done।